Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Animals in Group. In this chapter, we're going to talk about different kind of animals, their behavioral patterns and how they are useful to us. So, let's get started. Animals in groups. Many animals live in groups. They live and hunt for food together. Some animals live in small groups and some live in big groups. Animals like elephants, zebras, horses, buffaloes, lions, wolves, deer, beavers, penguins, flamingos, baboons, etc. live in groups of their own. बहुत सारे एनिमल्स ग्रुप्स में रहते हैं, कुछ छोटे ग्रुप्स में रहते हैं तो कुछ बड़े ग्रुप्स में रहते हैं. ये जनरली हंट करने के लिए ग्रुप में रहते हैं. एनिमल्स मेंटेन देयर ग्रुप्स फॉर द फॉलोइंग रीजंस: hunt efficiently, care for their babies, companionship, protect themselves against enemies, get warmth from each other's body. अब एनिमल्स ग्रुप क्यों बनाते हैं? ताकि वो एफिशिएंटली हंट कर सके, उनके बच्चों की अच्छे से देखभाल हो सके, अपने आप को एनिमीज से प्रोटेक्ट कर सके और एक दूसरे की बॉडी से उन्हें वार्मथ मिल सके. The groups may not be permanent because there is always transition into or out of the group. Some animals mingle with other animals only to breed. Leopards and polar bears live alone. अब ये ग्रुप्स परमानेंट नहीं होते हैं. कुछ एनिमल्स सिर्फ इसीलिए ग्रुप में रहते हैं ताकि वो ब्रीड कर सकें. आपके लेपर्ड्स और पोलर बियर्स अकेले रहते हैं. Behavioral patterns. All animals show different behavior pattern with different people. Some animals are shy and some are vibrant. When we go near to them, they run away or hide, or else they pounce on us to do friendship. But still, we should not disturb them. Lizard, squirrel, mouse, deer, birds, cockroach, rabbit are considered shy animals होते हैं. अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बहुत शाय होते हैं, जबकि कुछ बहुत ही एनर्जेटिक वाइब्रेंट होते हैं. तो अब हम इनके पास जाते हैं तो कुछ हाइड कर लेते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं, और कुछ हमसे फ्रेंडशिप करने के लिए हमारे पास आते भी हैं, लेकिन हमें इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. Some animals are friendly, they befriend easily. Dog, cat, elephant, dolphin, horse, etc. are friendly animals. Some animals live in the jungle, they may cause us harm, hence we cannot make them our friends. They become wild while going near. कुछ एनिमल्स फ्रेंडली होते हैं जैसे डॉग, कैट. कुछ एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं ये बहुत ही डेंजरस होते हैं और इन्हें हम अपना फ्रेंड्स नहीं बना सकते. Helpfulness. Some animals are very helpful to each other. They help each other in many ways. Water ducks eat insects which otherwise bother crocodiles. Egrets and oxpeckers sit on cows, buffaloes and rhinos and eat insects like ticks and fleas from their bodies. They help to clean the body of animals and at the same time get food. वाटर टिकअप इंसेक्ट खाता है. अगर वो इंसेक्ट्स को नहीं खाएगा तो वो क्रोकोडाइल को परेशान करते हैं. इसी तरह से एग्रेट एंड ऑक्सपेकर काउज और बफेलोज ये राइनोज की बॉडी पे बैठते हैं और उनकी बॉडी में छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जिन्हें टिक्स एंड फ्लीज भी कहा जाता है, उन्हें खाते हैं. द क्रोकोडाइल लाइज विद इट्स माउथ ओपन. द plover feeds on the bits of food stuck in the crocodile's teeth. The crocodile does not eat the plover. The plover gets food and the crocodile gets its teeth cleaned. इसी तरह से क्रोकोडाइल अपना मुंह खोल के रहता है और एक प्लोवर एक बर्ड होती है जो क्रोकोडाइल के दांतों में फंसे खाने को खाती है. अब क्रोकोडाइल के जो दांत हैं वो साफ हो जाते हैं एंड इन रिटर्न प्लोवर को खाना मिल जाता है. A type of fish called remora ride on top of turtles. They feed on the parasites on the bodies of their host animals. Birds and monkeys warn deer, zebras of the coming danger by different sounds. अब एक फिश जिसे कहते हैं रिमोरा, ये टर्टल के टॉप पे राइड करती है और उसकी बॉडी में जितने भी पैरासाइट्स होते हैं उन्हें खाती है. बर्ड्स और मंकीज डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं और ये वार्न करते हैं एनिमल्स को आने वाली डेंजर से. एनिमल्स हेल्प ह्यूमंस. एनिमल्स हेल्प ह्यूमंस इन मेनी वेज. एनिमल्स हेल्प फर्टिलाइज प्लांट्स. दे आर पार्ट ऑफ द फूड चेन एंड कीप इकोसिस्टम इन बैलेंस. They serve as companion animals like helping reduce depression, loneliness. Animals humans को भी बहुत तरीके से हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वो प्लांट्स को फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं. फूड चेन का ये इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं. इसके अलावा ये हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं जो हमारे डिप्रेशन, हमारे लोनलीनेस को कम करने में हेल्प करते हैं. Some animals are working animals. Horses, mules, cows, pulling carts, explosive bomb or drug sniffing dogs, scent tracking dogs, seals and dolphins trained by the Navy for security, search and rescue dogs, elephants,
transportation and moving object. They serve produce food for humans. Animals are not just animals, they are here for a purpose, and that is to help us, and that is why we need to also to give them value. अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं, जैसे काउज, एलिफेंट. इसी तरह से डॉग्स को ट्रेन किया जाता है बॉम्ब या एक्सप्लोजिव को स्निफ करने के लिए. सील्स और डॉल्फिन्स को भी ट्रेन किया जाता है नेवी के द्वारा सिक्योरिटी के लिए. और एलिफेंट ट्रांसपोर्टेशन में या किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में हेल्प करता है. तो एनिमल्स सिर्फ एनिमल नहीं है, वो हमारा एक पर्पस सर्व करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, इसलिए हमें भी एनिमल्स को वैल्यू देना चाहिए. Body covering. Animals have different body coverings to protect themselves. The body coverings help the animals to adjust to the climatic changes and also to protect their body. अब animals की body में covering होती है उनको protect करने के लिए, वो climatic changes में adjustment के लिए ये body covering उनको बहुत help करती है. There are basically 4 types of animal covering: fur, feathers, scales and shells. Fur is the hair that covers some animals. Scale are the hard plates that cover the bodies of some animals. Feathers cover a bird's body. They help them fly. A hard protective outer covering that protects some animals is called shell. तो 4 तरह की कवरिंग होती है. फर आपके एनिमल्स को कवर करते हैं, ये हेयर जैसे होते हैं. स्केल्स हार्ड प्लेट्स होती हैं एनिमल को बॉडी कवर करने के लिए. फेदर बर्ड की बॉडी में होते हैं जिनको हेल्प करते हैं फ्लाई करने में. एंड शेल आपको पता ही है, वो एनिमल को प्रोटेक्ट करते हैं, हार्ड कवरिंग होती है. Frogs and toads have moist skin which helps them to live in water. All the birds have feathers on their body that help them to fly and to keep themselves warm. Tiger, camel, lion, zebra, etc. have very little fur. This helps them to live in hot regions. Animals like yak and polar bear have thick hair on their body. It keeps them warm. Frog और toads की moist skin होती है जिससे कि वो पानी में रह सकते हैं. बर्ड्स के पास फेदर्स होते हैं जो उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं और उनको गर्म रखने में हेल्प करते हैं. इसी तरह से कुछ एनिमल्स के बॉडी पे थोड़े से फर होते हैं जिससे कि वो हॉट रीजन में रह सकते हैं. याक और पोलो बियर इनकी बॉडी पे थिक हेयर होते हैं. क्यों? क्योंकि ये कोल्ड रीजन में रहते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं. फिश, टॉर्टाइस, crocodile, chameleon and snake have scales on their bodies. The scales protect them from their enemies. Water, dolphin, polar bear and penguin keep their body warm with the help of the fat under the skin called blubber. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं और वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं उनकी एनिमीज से. इसी तरह से व्हेल, डॉल्फिन और पोलर बेयर और पेंगुइन ये अपनी बॉडी को गर्म रखते हैं. इनकी बॉडी के अंदर, इनकी स्किन के अंदर फैट होता है जिससे कहते हैं ब्लबर. प्रोटेक्शन गियर. Many animals have either a hard shell, thick skin, dry and hard scales, horns, spices and sharp claws. अब बहुत सारे एनिमल हैं, उनकी या तो हार्ड शेल होती है या थिक स्किन या ड्राई और हार्ड स्केल या फिर हॉर्न्स या फिर शार्प क्लॉज होते हैं जो उन्हें बचाते हैं. Porcupines' spines can injure enemies that go approach them. Tiny creatures like stick insects have body shapes or colors that match their surroundings. It helps them to hide from their enemies. Zebras have black and white strips on their bodies. This makes it more difficult for their enemies to spot them. Porcupines की पिक्चर आपको ये नज़र आ रही है, इसकी बॉडी में स्पाइंस होते हैं जो कि इसके एनिमीज़ को इंजर कर सकते हैं. इसी तरह से स्टिक इंसेक्ट होती है, इसकी बॉडी शेप और कलर ऐसा होता है कि इसके सराउंडिंग के साथ ही मैच हो जाता है. ज़ीब्रास के पास ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स होती है इसकी बॉडी में और बहुत ही डिफिकल्ट होता है उसके एनिमी को उसको स्पॉट करना. कोब्रास, वॉस्प्स एंड स्कॉर्पियंस यूज पॉइजन और स्टिंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. A pangolin or a hedgehog rolls up into a ball to protect itself. The shells of snails protect them from their enemies. Chameleons change their skin color to match their surroundings, which help them to hide from their enemies. Beetles and millipedes play dead whenever they are attacked. Squids give off black ink that darkens the water around, which confuses their enemies. इसी तरह से कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पॉइजन का यूज़ करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. पैंगोलिन या हेजहॉग है, वो बॉल की तरह रोल करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. स्नेल्स के शेल बहुत हार्ड होते हैं, उसके एनिमी से उसको प्रोटेक्ट करते हैं. गिरगिट आपको पता है कलर चेंज करती है अपने सराउंडिंग से मैच करते हुए, जिससे कि वो अपने दुश्मन की नज़र से छुप सके. इसी तरह से बीटल्स और मिलिपिड्स होते हैं, अगर इन पर अटैक होता है तो ये ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि ये डेड हो गए. स्क्विड आपका पानी में होता है और ये ब्लैक इंक गिव ऑफ करता है जिससे कि पूरा वाटर ब्लैक हो जाता है और उसके एनिमीज कंफ्यूज हो जाते हैं.
Colonies. Some animals such as ants, bees and termites live in large group of colonies. A colony of ants, for example, may consist of thousands to hundreds of thousands of ants. There is a strong cooperation in an ant colony whereby each member has a specific job to carry out. अच्छा, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं, जैसे कि आपकी आंट्स की कॉलोनीज, उसमें हज़ारों आंट्स साथ में रहती हैं और वहाँ पे हर किसी का एक पर्टिकुलर काम होगा जो से करेगा. There are ants responsible to defend the colony and attack other colonies. These ants called soldiers. There are ants responsible to look for food and feed members of the colony. They are called workers. There is an ant called the queen which spends her life laying eggs. ये आंट की कॉलोनी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है. कुछ ऐसी आंट्स होती हैं जो अपनी कॉलोनी का डिफेंड करती हैं और उन्हें कहा जाता है सोल्जर्स. और कुछ ऐसी आंट्स होती हैं जो खाने के लिए जाती हैं, खाने की तलाश में जाती हैं और पूरी कॉलोनी के मेंबर्स को फीड करती हैं, उन्हें कहा जाता है वर्कर. एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो क्वीन होती है वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अंडे देती है. Star facts. Some animals live in small groups and some live in big groups. All animals show different behavior pattern and different people. Animals are part of the food chain and keep ecosystem in balance. Fur, scales, feathers and shells are some of the body coverings found in animals. Many animals have either a hard shell, thick skin, dry and hard scales, horns, spices and sharp claws. Some animals such as ants, bees and termites live in large groups or colonies. अच्छा, अब एनिमल्स कुछ छोटे ग्रुप्स में रहते हैं, कुछ बड़े ग्रुप्स में. हर सभी एनिमल्स का डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न होता है एंड एनिमल्स हमारी इकोसिस्टम का, हमारी फूड चेन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. कुछ एनिमल्स की बॉडी में कुछ कवरिंग्स होती हैं जैसे फर, स्केल, फेदर जो उनको प्रोटेक्ट करती हैं. कुछ एनिमल्स में हार्ड शेल होती है, किसी की थिक स्किन, किसी की ड्राई और हार्ड स्केल्स होती हैं बॉडी में. एंड कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि बड़े ग्रुप्स या फिर कॉलोनीज में रहते हैं. So children, I hope आप चैप्टर समझ गए होंगे. अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करेंगे.